Very good morning to all of you. In the last class, we have started a new chapter of your business studies, class 11th, that is chapter 10, international business. So in this chapter, we are going to study what is the meaning of the international business, what are the different types of the international business, features of the external trade, problem of the international business, difference between the external trade and the internal trade, reasons for the internal business, why we are going to do the international business, as well as the difference between the international business versus domestic business, importance of the external trade, what are the importance of the external trade, mode of entering into the international business, what are the different mode of entering into the international business, what are the different export procedure, what is the meaning of export, and what are the procedure for exporting the goods. So in this, steps involved in the export procedure. Next one is import procedure. So what is the meaning of import and what are the procedure for importing the goods. So we have to study the different steps involved in the import procedure, but due to COVID, your syllabus has been reduced, so we are not going to study those topic, that is export procedure and the import procedure. Next one is principal documents used in the export procedure. Okay, what are the different document which is needed when we are going to do the export procedure, exporting. Next one is auxiliary document used in the export procedure. What are the different related documents which are used in the export, important document used in the import procedure, कौन से important document है जो import procedure में needed हैं. Next one is important terms used in the external trade. What are the different important terms which are used in the external trade. And next one is WTO. What is the meaning of WTO? What is the different natures of the WTO, as well as benefits and the agreements of the WTO. But due to again the COVID, your syllabus has been reduced, so we will not going to study the meaning of the WTO, meaning and the objectives of the WTO. Okay, WTO means World Trade Organization, but we will summarize the basic main things what the WTO does. ठीक है, WTO क्या करता है, वी विल समराइज इट. हम लोग एक समरी में ले लेंगे कि क्या करता है, पूरा उसको थॉरोली ना पढ़ के उसकी जिस्ट जान जाएंगे कि व्हाट द एक्चुअली WTO डज, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो सी द प्रोसीजर ऑफ द एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, so let's start. That we have already discussed in the last class, what is the meaning of the international business. Okay, so international business refers to the buying and selling of the goods or services beyond the geographical limits of the country. Okay, क्या होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस का सिंपल मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल करते हैं. ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि सिंपली द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. But when we go through the internal trade, तो buying and selling of the goods and services within the country. Okay, हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री में ही क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल करते हैं. बट जहाँ पे बात आ जाती है इंटरनेशनल की, वहाँ पे क्या होता है कि हम बियॉन्ड दी कंट्री की बात करते हैं. मतलब हम अब अपनी कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं है. अब हम क्या हैं कि डिफरेंट गुड्स को हम दूसरे कंट्री में सेंड भी कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री में गुड्स को बाय भी कर सकते हैं. मतलब हम सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे. सेल हम उन कमोडिटी को करेंगे जो हमारी कंट्री में अबंडेंट है, मीन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, अपनी कंट्री से यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब बाहर भेजेंगे. और जो हमारी कंट्री में क्या है, स्कैर्स हैं, लिमिटेड हैं, उनको हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से मंगाएंगे. ओके, तो इंटरनेशनल बिजनेस सिंपली मीन्स दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री. मतलब जो जोग्राफिकल लिमिट है हमारी कंट्री की, उसके बियॉन्ड बात करते हैं. हम अब लिमिटेड नहीं है एक जोग्राफिकल लिमिट पे. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़. टू कंट्रीज़ के बीच में
टू और मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो in the international business it is also called the external trade. It is of three types के होते हैं. First one is export. Okay, export means selling goods or services to foreign countries. हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे goods हैं, जो भी abundant amount में है, बहुत ज़्यादा amount में हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में भेज देंगे. कि हम अपनी कंट्री की बेसिक नीड्स देखेंगे. अगर हमारी कंट्री में क्या है, प्रोडक्शन 500 यूनिट हुआ है किसी भी कमोडिटी का फॉर एग्जांपल, और हमारी कंट्री में क्या है 300 यूनिट की ही नीड है, तो 200 जो एक्स्ट्रा है, अबंडेंट है, वो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में सोल्ड आउट कर देते हैं. ओके, तो इट रेफर्स टू सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दी फॉरेन कंट्रीज़. फॉरेन कंट्रीज़ में गुड्स को सोल्ड आउट करना. नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स इट रेफर्स टू द बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री. मतलब इम्पोर्ट मतलब कि अपनी कंट्री में किसी भी गुड्स को मंगाना. इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री से, जो भी फॉरेन कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है, लिंक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री से हम उन गुड्स को बाय करेंगे. ठीक है, हमारी कंट्री में मे बी जैसे ऑयल का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं. इराक, ईरान, यहाँ से क्या आता है हमारी कंट्री में, ओपेक कंट्रीज़ हैं जो, वहाँ से क्या आता है हमारी कंट्री में ऑयल आता है. तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट. मीन्स दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से हम अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाय कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ एंटरपोर्ट. एंटरपोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी री एक्सपोर्ट. इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं. मतलब इम्पोर्ट करेंगे, मतलब हम को वो गुड्स हम इम्पोर्ट अपनी कंट्री में करेंगे, बट नॉट फॉर आवर सेल्फ कंजप्शन. हम उसको सेल्फ कंजप्शन, खुद के कंजप्शन के लिए उसको इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं. हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हम दूसरी कंट्री में उसको फिर से सोल्ड आउट करें. मीन्स पहले हम बाई करेंगे, उन्हीं गुड्स को हम पहले बाई करेंगे, एंड आफ्टर डैट वी विल सोल्ड इट टू दी अदर फॉरेन कंट्री. हम किसी और कंट्री को क्या करेंगे, वही गुड्स को सोल्ड आउट कर देंगे. सो इट इज़ कॉल्ड दी एंटरपोर्ट. इसको क्या बोलते हैं, एंटरपोर्ट बोलते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, दैट इज़ नेचर ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड और द इंटरनेशनल बिजनेस. कि बेसिकली इसका नेचर कैसा होता है, कि हम क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, कि ये सिंपली किसको हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल ट्रेड है, और इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है. सो इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज़. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, टू कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं. मतलब मिनिमम क्या है, 2 कंट्रीज़ चाहिए, और मोर देन 2 कंट्रीज़ भी होती हैं. सो द मेन फीचर ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड आर, जो मेन फीचर है एक्सटर्नल ट्रेड का क्या है, वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज़ एंड पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी. इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज़ मीन्स क्या हो गया, कि इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व. इंटरनेशनल बिजनेस में मिनिमम 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट एकदम मैंडेटरी है. अब आप किसी के साथ ट्रेड करोगे एज अ इंडिया, आप अगर किसी के साथ ट्रेड करो तो आपको कोई तो कंट्री चाहिए ना, किसके साथ आप ट्रेड करोगे. तो इसके लिए क्या है, मिनिमम 2 कंट्रीज़ होनी ही चाहिए. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं. आप कितनी भी कंट्री के साथ गुड्स को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो मिनिमम 2 कंट्रीज़ आर नीडेड और इन्वॉल्व्ड. बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस दी buying and selling across the border of the country can be also termed as the external trade. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाय और सेल कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री. अपनी कंट्री के बाहर क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाई एज वेल एज सेल कर रहे हैं. सो कैन बी टर्म्ड एज द एक्सटर्नल ट्रेड. उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे. ट्रेडिंग बिटवीन 2 फार ऑफ सिटीज़ ऑफ द सेम कंट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज द इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, ट्रेड अगर हम करते हैं 2 फार ऑफ सिटीज़, मतलब एक ही कंट्री के 2 सिटीज़ में जो बहुत फार ऑफ हैं, बहुत दूर हैं, कोई आपके साउथ में है और कोई आपका
नॉर्थ में, उन दो सिटीज़ के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो सेम कंट्री के अगर हम दो सिटीज़ के बीच में ट्रेड करते हैं, सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज दी इंटरनेशनल बिजनेस। इसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस नहीं बोलेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम 2 कंट्रीज़। ठीक है, 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट एकदम मैंडेटरी है, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू डू दी इंटरनेशनल बिजनेस। उस कंडीशन में हमें 2 कंट्रीज़ चाहिए ही चाहिए। अब एक ही कंट्री के 2 सिटी में 4 सिटीज़ में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, इन दैट कंडीशन इट इज़ नॉट कॉल्ड एज द इंटरनेशनल बिजनेस। एक्सटर्नल ट्रेड as well as the foreign trade or the international trade. So first condition is there should be involvement of the 2 countries. पहला कंडीशन क्या है कि 2 countries का इन्वॉल्वमेंट एकदम मैंडेटरी है। नेक्स्ट वन इज पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी। ओके, नेक्स्ट वन इज पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी। जो भी हम गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं और जो भी हम गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारी अपनी जो करेंसी है उसमें नहीं होगा। क्योंकि अगर इंडिया में इंडियन नेशनल रुपी चलता है, रुपी चल रहा है, तो किसी और कंट्री में क्या है, वो करेंसी नहीं होती है। ठीक है, अब अमेरिका की, इंग्लैंड की, ये सब का क्या है, अमेरिका में आपका डॉलर चल रहा है, आपका इंग्लैंड में आपका क्या चल रहा है, पाउंड चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो चल रहा है। तो अब हम अपना ट्रांजैक्शन उस कंट्री में अपनी करेंसी से नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें वीज़ा ये सब नीडेड होता है ना, तो उसके लिए हमको क्या, हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपनी करेंसी को भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस इंडियन रुपी की कोई वैल्यू नहीं है, वो वर्थलेस है। मतलब आपके लिए वो वर्थ ही नहीं है कि आप उसको एज अ पेपर वहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको वो फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। अब हमारे यहाँ डॉलर, हम कोई शॉप पे लेकर जाएंगे कि मुझे इतनी सब्ज़ी दे दो या इतना सामान, ग्रॉसरी का सामान दे दो, तो क्या वो वर्थफुल है, वर्थ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट मनी इनटू आवर करेंसी। हमको अपनी करेंसी में उन रुपी को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। पेमेंट फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स इज़ मेड इन द फॉरेन करेंसी। जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जो हमारी कंट्री में गुड्स आ रहे हैं, मतलब अमेरिका से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हम उनका पेमेंट किस में करेंगे, इंडियन रुपी में नहीं करेंगे, हम लोग किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डॉलर इज़ प्रीवेलेंट, डॉलर वहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए हम उसका पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, और जो पेमेंट हो रहा है एक्सपोर्ट का, मतलब हमने जो भी गुड्स को सोल्ड आउट किया, एक्सपोर्ट किया, हमने अपने गुड्स को बाहर भेजा, अमेरिका में भेजा, तो जो भी उसका पेमेंट होगा दैट इज़ ऑल्सो इन दी फॉरेन करेंसी, वो भी फॉरेन करेंसी में होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं ना, फॉरेन करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पे जाके जो भी बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करती है। तो जो हम पेमेंट करेंगे और जो हम रिसीव करेंगे, दोनों ही क्या होगा, दैट ऑल आर इन दी फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी में ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसा तो है नहीं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, इट इज़ परफेक्ट, वी कांट टेक एनी द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी बहुत सारी, इंटरनेशनल बिजनेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जो कोई भी गवर्नमेंट एज वेल एज कोई भी बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर को ही और शी हैज़ टू फेस इट, उनको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ yes, so first one is legal procedure. Legal procedure means import or the export of goods involved a lengthy and complicated procedure. ठीक है, अगर हम गुड्स को इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, लेंदी प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत 1-2 दिन में हम सारा
जितना भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेंगे. इट विल टेक टू मच टाइम एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो दी कॉम्प्लिकेटेड. वो क्या है, बहुत सारा उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं. सो वी हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है. प्रायरली परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग दी गुड्स. ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये सारे चीज़ क्या होते हैं, अंडर गवर्नमेंट के अंदर ही ये सारे काम होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दी परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट फॉर दी एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग दी गुड्स. अगर हमको गुड्स को इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट करना है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. वन हैज़ टू फिल दी मैनी डॉक्यूमेंट. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा. गेट कस्टम क्लियरेंस. कस्टम से भी क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ जो लगती हैं, जो भी डिफरेंट इंपोर्ट करते हैं हम गुड्स को, तो उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, तो वहाँ से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा. कन्वर्जन ऑफ दी रुपी इनटू दी फॉरेन करेंसी. और क्या करना पड़ेगा कि इंडियन रुपी को हमको फॉरेन करेंसी, अब जिस कंट्री के साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हमको अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. बुकिंग ऑफ शिप. अगर वो मरीन के थ्रू जा रहा है, वाटर के सोर्स के थ्रू जा रहा है, तो शिप को भी क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा. पहले ही सारे काम करने पड़ते हैं. सो ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. ये सारे जो वर्क हैं वो क्या हैं, टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बस 1 और 2 डेज़ का है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है. नेक्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्शंस. सो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड. जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंटरनल ट्रेड की तरह एकदम फ्री नहीं है. इसमें क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिकॉज अब हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं तो हम कुछ भी ऊपर नीचे काम कर सकते हैं फ्री ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस. नहीं, वी हैव टू फॉलो ऑल द रिस्ट्रिक्शंस. ओके, सो इन केस ऑफ सेवरल आइटम एक्सपोर्ट और द इम्पोर्ट आइटम्स हैज़ टू बी ऑब्टेन. ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, कोई भी टॉक्सिक थिंग्स हो जाती है ना, उनके लिए लाइसेंस लेना एकदम मैंडेटरी होता है. ठीक है, तो कुछ ऐसे सेवरल आइटम्स होते हैं जो थोड़े हैज़ार्डियस होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि हाँ, लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है. सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करती है ऑन एक्सपोर्ट और द इम्पोर्ट ऑफ द सर्टेन आइटम. कुछ गुड्स के कुछ सर्टेन आइटम को इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन दी पुट द डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी सेवरल items. Okay, next one is high risk. So the risk involved in the international business is much higher than the internal trade. तो जो भी रिस्क इन्वॉल्व हो रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में वो एज कंपेरिजन टू इंटरनल ट्रेड इट इज़ मच हायर. ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज़ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. मीन्स ट्रांसमिशन में जब गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्योंकि जो भी टाइम है, जो भी डिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग है. ठीक है, वो अब एकदम थोड़ा बहुत नहीं है कि 1500 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है. हमें क्या करना था, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. सो देयर इज़ ऑल्सो चांसेस ऑफ द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द गुड्स. तो जो गुड्स हैं उनकी ये भी चांसेस है कि वो डैमेज भी हो सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ द फ्लक्चुएशन इन करेंसी कन्वर्जन. अब इसमें ये भी चांसेस है कि रिस्क इसमें है कि करेंसी जो भी कन्वर्जन, जैसे इंडिया और अमेरिका ने जब अपने साथ एक ट्रेड किया, जब उन्होंने बात की कि हम ये इस गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम $1 इक्वल टू 60 था. ओके, ठीक, $1 पे इंडिया का अगर 60 रुपीज़ जा रहा है तो अमेरिका को बस $1 देना पड़ रहा है. ठीक है, उनके $1 हमारे 60 रुपीज़ के इक्वल है. तो जब वो लोग ट्रेड में आए इंडिया अमेरिका, दे हैव डिसाइडेड दिस रेट. ओके, बट इसमें क्या हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया. अब क्या है, $1 इक्वल टू अब इंडिया को 70 देना पड़ रहा है. तो इसमें रिस्क हुआ कि नहीं. अब पहले $1 पे इंडिया को 60 रुपीज़ देना पड़ा था, अब $1 पे इंडिया को 70 रुपीज़ देना पड़ा है. तो इंडिया के लिए 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये सारे रिस्क भी क्या करना पड़ता है, जो भी ट्रेडर है जो ट्रेड कर रहा है गुड्स को, दे हैव टू
face all the risk. So the exporter must take marine insurance policy before sending the goods through ships. ओके, अब एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, उसको क्या करना पड़ता है, मरीन इंश्योरेंस. एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ मरीन इंश्योरेंस. तो मरीन इंश्योरेंस करना पड़ता है, पॉलिसी लेनी पड़ती है बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू शिप्स. ठीक है, शिप के भेजने से पहले कोई भी एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, मरीन इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, जो कोई भी गुड्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इन केस शिप में उसका क्या हो गया, सारे गुड्स सिंक हो गए, सारे डूब गए, बह गए, या कुछ भी कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, तो इन दैट कंडीशन अगर वो इंश्योरेंस लिया रहेगा तो उसको उतना अमाउंट क्या है वो वापस मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस. So different languages are spoken and written in the different countries. Trader must appoint someone who can read and understand the foreign language to read the price list, terms and condition of trade. Okay, क्या होता है कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, अब हम ट्रेड कर रहे हैं तो वी विल फेस दोज पीपल हु हैव द डिफरेंट लैंग्वेज as well as they have the different culture. Okay, first of all when we talk about the language, तो लैंग्वेज की बात करते हैं तो उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होगी. हम इंडिया में क्या है, हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं तेलुगु, तमिल, जो भी है वो सब बोलते हैं. बट अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होती है. सो इन दैट कंडीशन क्या होता है, ट्रेडर मस्ट अपॉइंट समवन हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज. अब ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है उसको एक ऐसे इंडिविजुअल को भी अपॉइंट करना पड़ता है जो उनकी लैंग्वेज को ईजिली रीड भी कर सके और अंडरस्टैंड भी कर सके, वो उनकी लैंग्वेज को समझ भी सके एज वेल एज रीड भी कर सके. अगर कोई भी उस पर कुछ भी दिया है, प्राइस कितना है गुड्स का, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ट्रेड के, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, तो ये सारे के लिए उसको ईज़िली अंडरस्टैंड और रीड करने के लिए ट्रेडर को क्या करना पड़ता है, एक इंडिविजुअल को अपॉइंट भी करना पड़ता है. सो दीज ऑल ऑल्सो दी सम प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, जो इंटरनल ट्रेड में किसी भी को फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलमोस्ट दे नो द इंग्लिश एज वेल एज द हिंदी और सम रीजनल लैंग्वेज. सो ये क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है व्हेन वी गो थ्रू द इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, next one is arrangement of the foreign currency. So for making payment of the importer has to arrange the foreign currency which involves lengthy procedure. Okay, so अगर different payment for making payment of import, अगर import करना है तो उसके पहले importer को क्या करना पड़ता है, foreign currency को भी arrange करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसके पास goods आ जाएंगे तो दे हैव टू पे द अमाउंट इन द फॉरेन करेंसी. उनको क्या करना पड़ेगा इंपोर्टर को, कि उसको जो भी पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में ही करना पड़ेगा, विच इन्वॉल्व द लेंदी प्रोसीजर. अब किसी भी इंडिविजुअल को अपने मनी को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन दैट कंडीशन क्या है कि वो ऐसा नहीं कि वो आज तुरंत जाएगा कोई भी एक्सचेंज में एज वेल एज बैंक में, तो ईजिली वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे. इन दैट कंडीशन वो पूरा जहाँ भी वो जाएगा तो बहुत लेंदी प्रोसीजर होगा. अब वो स्मॉल अमाउंट तो कन्वर्ट करेगा नहीं, ऑलमोस्ट लाख करेगा, 50 लाख, जितने का भी वो गुड्स को ऑर्डर किया है. सो इस कंडीशन पे क्या होता है कि बहुत ही लेंदी प्रोसीजर भी होता है. सो इट टेक्स टू मच टाइम भी लेता है. सो दीज ऑल आर दी सम प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बिजनेस. फर्स्ट वन इज़ लीगल प्रोसीजर, restrictions, high risk, different languages and the arrangement of the foreign currency. Okay, so next topic is what is the difference between the internal trade and external trade. Okay, next topic यही है कि basic difference क्या है internal और external trade में. हम how can we identify that this is the internal trade or this is the external trade. Okay, so we will discuss all the difference along with the point of difference. Okay, on which basis we will discriminate between the internal trade as well as external trade. So first one is meaning. So internal trade refers to the buying and selling of goods within the geographical limit of a country. Means हम क्या करेंगे, goods को जो भी buy as well as sell कर रहे हैं
तो विद इन द जोग्राफिकल लिमिट, जो हमारी जोग्राफिकल लिमिट है मीन्स हम बस इंडिया के ही अंदर क्या करेंगे, गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे. बट when we talk about the external trade too refers to the buying and selling of the goods beyond the geographical limit. अब हम बस एक जोग्राफिकल लिमिट अपने इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है. हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो क्या है कि जोग्राफिकल लिमिट के बाहर करेंगे. मतलब हमारी जो भी एरिया है, हमारी कंट्री की जो भी एरिया है, हम उसके बाहर भी ट्रांजैक्शन और ट्रेड करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड. सो इन द केस ऑफ इंटरनल ट्रेड ओनली वन कंट्री इज़ इन्वॉल्व. ठीक है, अगर हम इंटरनल ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या है, वन कंट्री ही इन्वॉल्व है और हम कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड मिनिमम 2 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व. अगर एक्सटर्नल ट्रेड की हम बात करते हैं तो उसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होगी ही होगी. ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिस्क. सो लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज़ इन्वॉल्व. ओके, इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि हम लोग विद इन दी कंट्री ट्रांजैक्शन और ट्रेड कर रहे हैं, तो जो रिस्क है उसकी बहुत लेसर चांसेस होती हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री की बात होती है तो उसमें क्या है कि गुड्स को बहुत ज़्यादा दूर तो जा नहीं रहा है, तो उसमें जो भी चांसेस हैं कि गुड्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे या हमको ऐसा इंश्योरेंस कराना है, करेंसी फ्लक्चुएट करेगी क्योंकि हर एक पूरे इंडिया में इंडियन रुपी ही चलेगी, तो ये सब चांसेस नहीं है कि फ्लक्चुएशन हो. बट व्हेन वी गो थ्रू दी एक्सटर्नल ट्रेड सो हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज़ इन्वॉल्व. ठीक है, उसमें रिस्क क्या है, ज़्यादा है कि लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, आज वाला जो भी डैमेज है गुड्स वो हो जाए, जो करेंसी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये सारे क्या है, रिस्क होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ करेंसी यूज्ड. सो करेंसी यूज्ड पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन दी होम करेंसी ओनली. ठीक है, अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे तो जो भी पेमेंट हो रहा है, जो भी पेमेंट हम लेंगे, पेमेंट करना और रिसीव करना, जो भी पेड कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, दे ऑल आर इन दी होम करेंसी. मतलब हम इंडियन रुपी में ही करेंगे. अब आप यहाँ से तमिलनाडु से कोई गुड्स को मंगा रहे हो तो ऐसा थोड़ा है कि कोई और मनी दे रहे हो, सिंपल आप इंडियन करेंसी को ही यूज़ कर रहे हो. ठीक है, बट एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन दी फॉरेन करेंसी. पेमेंट क्या है, जो मेड भी करेंगे हम, जो पेड करेंगे और जो रिसीव करेंगे, बोथ आर इन फॉरेन करेंसी. वो किस में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड. सो नो लॉन्ग प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग. ठीक है, इन द इंटरनल ट्रेड कोई ऐसा लॉन्ग प्रोसीजर होता नहीं क्योंकि हम लोग विद इन द कंट्री करते हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करनी होती है. बट लॉन्ग प्रोसीजर and many formalities have to be completed before starting. ठीक है, and when we talk about the external trade तो उसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उसको फुलफ़िल करना एकदम मैंडेटरी है. नेक्स्ट वन इज़ मोड ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट कैसे हम करेंगे. तो पेमेंट आर मेड बाय द कैश और चेक्स. ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इंडिया में कर रहे हैं तो अगर हमको पेमेंट करना है तो हम कैश में कर सकते हैं, या तो चेक कर दे कि चेक बना दे, इतने का गुड्स मैंने लिया, 50,000 के चेक पे मैंने साइन कर दिया. ओके, बट इन दी केस ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट आर मेड थ्रू दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट क्या हो जाता है, एडेड हो जाता है कि इतने अमाउंट्स का गुड्स लिए यार, और थ्रू दी बैंक्स, मतलब जो इंडिया के बैंक से हम ट्रांसफ़र कर देंगे फॉरेन की कंट्री के बैंक्स में जिसमें उसका अकाउंट होगा. ठीक है, वहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर देंगे. लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इन द केस ऑफ द इंटरनल ट्रेड नेशनल लॉज एंड रूल्स आर एप्लीकेबल. मीन्स अगर हम लोग इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वी हैव टू फॉलो ऑल दीज ओनली. बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल. ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, हम लोग इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सो वी हैव टू फॉलो ऑल दीज. नेक्स्ट वन इज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हम कैसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो इन द केस ऑफ इंटरनल ट्रेड इट यूज्ड रोड, रेलवे और रेलवे मोड करेंगे. ठीक है, रोड से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेलवे के थ्रू हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इट यूजेस ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. मीन्स सी रूट के थ्रू हम ले जा सकते हैं गुड्स को, और एयर के थ्रू, फ्लाइट्स के थ्रू, इनके थ्रू हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज़ कैश कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हुआ है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उस गुड्स को ऑपरेट करने में, हम ट्रांजैक्शन करने में, गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो जो उसका कॉस्ट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा। बट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेट करने में जो कॉस्ट होगा, इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इट विल बी द मोर। एक्सटर्नल ट्रेड इज हायर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए क्या होगा, जो कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन दी फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व मीन्स फॉरेन करेंसी जो हम लोग रखते हैं उसके बारे में। इंटरनल ट्रेड हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी फॉरेन रिजर्व ऑफ ए कंट्री, क्योंकि हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व रखे हुए हैं, फॉरेन करेंसी रखे हुए हैं, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इंटरनल ट्रेड में। बट इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी फॉरेन रिजर्व ऑफ ए कंट्री, क्योंकि हर एक कंट्री में फॉरेन रिजर्व रखा जाता है। मतलब हमारी कंट्री में अलग अलग कंट्री के जो मनी है ना, फॉरेन करेंसी, वो रखे होते हैं, क्योंकि ये सब दे आर हेल्पफुल इन दी ट्रांजैक्शन। तो इंटरनल ट्रेड में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड में इसका क्या होता है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो फॉरेन करेंसी में ही होगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue further in the next class. Okay, thank you.